پہاڑوں کے سائے میں دبا ہوا وہ گاؤں عام گاؤں جیسا نہیں تھا۔ دن کے وقت وہاں زندگی ہنستی تھی، بچے کھیلتے تھے، کھیتوں میں ہریالی تھی، مگر سورج ڈھلتے ہی فضا میں ایک انجانا بوجھ اتر آتا۔ بوڑھے لوگ مغرب کے بعد دروازے بند کر لیتے، مائیں بچوں کو سینے سے لگا لیتی تھیں۔ اس گاؤں کا نام نورپور تھا، مگر رات کو وہاں نور نہیں صرف سائے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کچھ بستیاں زمین پر نہیں ہوتی، وہ بس رہنے والوں کے وہم میں ہوتی ہے۔ نورپور بھی ایسا ہی ایک گاؤں تھا۔ سرکاری نقشوں میں اس کا نام کہیں درج نہیں تھا، مگر جو ایک بار وہاں گیا وہ ساری زندگی اس گاؤں کو بھلا نہ سکا۔ پہاڑوں کے بیچ دبا ہوا، دھند میں لپٹا اور خاموشی میں ڈوبا ہوا یہ گاؤں دن میں عام لگتا تھا، مگر سورج ڈھلتے ہی جیسے کسی نے اس پر کوئی اور دنیا انڈیل دی ہو۔ یہاں رات جلد اترتی تھی اور دیر سے جاتی تھی۔ گاؤں کے سب سے پرانے مکین حاجی نعمت اللہ کہا کرتے تھے، یہ زمین ہمیں قبول نہیں کرتی، ہم خود کو اس پر مسلط کیے بیٹھے ہیں۔ کوئی ان کی بات پر دھیان نہ دیتا جب تک پہلی چیخ نہ سنائی دی۔ نورپور ابتدا میں ایک امید تھا۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ یہاں آ کر بسے۔ زمین زرخیز تھی، پانی میٹھا تھا اور پہاڑ آندھیوں کو روک لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ جگہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ نعمت اور آزمائش کے درمیان فرق صرف وقت بتاتا ہے۔ پہلے مہینے مویشی غائب ہونے لگے، کسی نے کہا جنگلی جانور ہوں گے، پھر رات کو دروازوں پر خراشوں کے نشان نظر آنے لگے، کسی نے کہا آوارہ کتے ہوں گے، مگر جب خراشیں اندر کی طرف ہونے لگے تو بہانے ختم ہو گئے۔ ایک رات گاؤں کے کنویں سے کسی عورت کی سسکی سنائی دی۔ صبح اس کی لاش کنویں سے نکالی گئی، نہ ڈوبنے کے نشان نہ زخم، بس آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے کسی چیز کو دیکھ کر جم گئی ہو۔ اسی دن سے لفظ سایہ زبانوں پر آیا۔ لوگ کہتے تھے کہ مغرب کے بعد اگر چراغ کی لو سیدھی نہ رہے، اگر دیوار پر سائے ضرورت سے زیادہ لمبے ہوں، اگر کتے بلا وجہ رونا شروع کر دیں، تو سمجھ لو وہ جاگ رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیا ہے، انسان نہیں، جانور نہیں، اور شاید جن بھی نہیں، بس ایک وجود جو یہ مانتا تھا کہ یہ گاؤں اس کا ہے۔ ایک بچہ اسماعیل گاؤں کے باہر کھیلتے کھیلتے غائب ہو گیا۔ اس کی ماں پاگلوں کی طرح پہاڑوں میں چیختی رہی۔ 3 دن بعد اس کی لاش ملی، مگر لاش ایسی تھی جیسے وقت نے اسے چھونا چھوڑ دیا ہو۔ یہ پہلا موقع تھا جب گاؤں والوں نے محسوس کیا یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ اعلان ہے۔ راتوں کو اب لوگ ایک جیسے خواب دیکھنے لگے، ایک خالی گاؤں، ٹوٹے دروازے اور ایک آواز جو کہتی تھی یہ جگہ میری ہے، لیکن آواز دہراتی نہیں تھی، ہر بار مختلف انداز میں، مگر مطلب ایک ہی۔ حاجی نعمت اللہ نے ایک رات سب کو جمع کر کے کہا، تم نے جو بسایا ہے وہ کبھی ہمارا نہیں تھا۔ اس رات کے بعد نورپور میں کوئی رات پرسکون نہیں رہی۔ نورپور کی اس رات میں کوئی چاند نہیں تھا، آسمان ایسے تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس سے روشنی نوچ لی ہو۔ ہوا رکی ہوئی تھی، درخت ساکت اور کتوں کی آوازیں یکایک ختم ہو چکی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب گاؤں کے بزرگوں نے دل ہی دل میں مان لیا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ مغرب کے فوراً بعد پہلا چراغ بجھا، پھر دوسرا، پھر پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لوگوں نے سوچا یہ اتفاق ہے، مگر اندھیرے میں جو سنا گیا وہ اتفاق نہیں تھا۔ کسی کے چلنے کی آواز نہیں، بس جیسے زمین پر کوئی بھاری چیز سرک رہی ہو۔ مٹی کی بو ہوا میں گھل گئی، پرانی سڑی ہوئی، جیسے کسی قبر کو کھول دیا گیا ہو۔ اسی لمحے مسجد کے مینار سے ایک عجیب سی گونج ابھری۔ اذان نہیں تھی، مگر آواز میں ایسی کپکپاہٹ تھی کہ دل سینے میں ٹھٹک گئے۔ کچھ لوگوں نے کھڑکیوں سے جھانکنے کی کوشش کی، مگر جو دیکھا اس کے بعد کسی نے دوبارہ کھڑکی نہیں کھولی۔ سایہ گاؤں میں اتر چکا تھا، وہ کسی ایک سمت سے نہیں آیا، وہ ہر طرف تھا، دیواروں پر، چھتوں کے نیچے، گلیوں میں پھیلا ہوا۔ وہ شکل نہیں بدل رہا تھا، وہ حدیں بدل رہا تھا۔ کہیں وہ دیوار سے بڑا تھا، کہیں انسان کے قد جتنا، اور کہیں محض ایک دبیز اندھیرا۔ پہلی چیخ گاؤں کے مشرقی حصے سے آئی۔ وہ چیخ لمبی نہیں تھی، جیسے کسی نے چیخنے کا موقع ہی نہ دیا ہو۔ لوگ گھروں میں دبک گئے، مائیں بچوں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد دوسری چیخ، پھر تیسری، پھر ایک ساتھ کئی آوازیں جو آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئیں۔ صبح جب سورج نکلا، نورپور پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ 4 لاشیں ایک ہی گلی میں ملی تھیں، سب کے چہرے ایک جیسے تھے، آنکھیں پھیلی ہوئی، ہونٹ آدھے کھلے، جیسے آخری لمحے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر زبان نے ساتھ نہ دیا ہو۔ کسی کے جسم پر زخم نہیں تھا، مگر سب کے دل ایک ہی لمحے میں رک گئے تھے۔
एक बूढ़ी औरत की लाश दरवाजे के अंदर मिली, जैसे वो भागते भागते गिर गई हो। इसके नाखून फर्श में गड़े हुए थे, जैसे वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। लोग अब खामोश नहीं थे, वो टूट चुके थे। इसी दिन एक और बात भी सामने आई। गांव के किनारे पर एक पुराना शिकस्ता कुनवा था, जिसे बरसों पहले बंद कर दिया गया था। इस कुनवे के गिर्द रात को जमीन नम हो गई थी, जैसे अंदर से कुछ बाहर आया हो। कुनवे के मंडेर पर हाथों जैसे निशान थे, इंसानी नहीं, लंबे और टेढ़े। हाजी नेमत अल्लाह ने उन्हें देखकर बस इतना कहा, ये वही रास्ता है। किसी ने पूछा, किसका रास्ता? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका लें। उसी रात गांव के 3 नौजवान पहाड़ की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते थे, ये जगह छोड़नी होगी अभी, इसी वक्त। वो गांव से निकल भी ना पाए थे कि अचानक अंधेरा उनके सामने ठोस हो गया, जैसे हुआ दीवार बन गई हो। सुबह तीनों की लाशें गांव के दरवाजे पर पड़ी थीं, मगर उनके चेहरे गांव की तरफ थे, जैसे किसी ने उन्हें वापस फेंक दिया हो। ये वाज़े पैगाम था, कोई जा नहीं सकता। अब लोग एक बात मानने लगे थे कि ये कोई आम आफत नहीं, ये बदला था। मगर बदला किस बात का? इस सवाल का जवाब अभी दफन था, मगर साया हर रात जमीन के इस राज को कुरेद रहा था। इसी दौरान एक बच्ची ज़ैनब, जो बोल नहीं सकती थी, अचानक बोल उठी। इसने माँ से कहा, वो कह रहा है ये सब उसका था और हम चूर हैं। ये सुनकर माँ बेहोश हो गई। नूरपुर में अब दिन भी महफूज नहीं रहे थे। साए दोपहर को भी लंबे होने लगे, कुनों से बदबू आती और मस्जिद में बैठकर भी लोगों को सुकून ना मिलता। एक सवाल हर दिल में धड़क रहा था, ये साया अकेला नहीं है। शायद इसकी कहानी अभी पूरी नहीं खिली। नूरपुर की जमीन अब सिर्फ मिट्टी नहीं रही थी, वो याद रखने लगी थी। हर कदम के साथ जैसे कोई पुरानी आह सुनाई देती। हर रात किसी दफनशदा सच की महक फैल जाती। लोग मर रहे थे, मगर साया मुतमईन नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ जाने नहीं चाहता था, वो एतराफ चाहता था। इसी दिन गांव के पुराने हिस्से में मस्जिद के पीछे एक झुकी हुई दीवार गिरी। दीवार के पीछे जो निकला, इसने पूरे गांव की जबान बंद कर दी। एक कमरा नहीं, कब्र। मगर कब्र इंसानों की नहीं थी, वो हड्डियां आम नहीं थीं, लंबी, पुतली और अजीब जावियों पर जड़ी हुई। खोपड़ियां ऐसी कि आंखों के खाने हद से ज्यादा गहरे, जैसे देखने के लिए नहीं झांकने के लिए बने हों। कुछ हड्डियों पर जलने के निशान थे। हाजी नेमत अल्लाह वहां बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, बस आवाज टूट गई, ये वही है। लोग समझे नहीं, उन्होंने खुद को समझाना नहीं चाहा। कई साल पहले जब नूरपुर अभी बसाया जा रहा था, यहां कुछ और आबाद था। ये मखलूक ना इंसान थी ना जिन, बल्कि दोनों के बीच की कोई शे। वो बोलते कम थे, देखते ज्यादा थे और जमीन के साथ जुड़े थे। वो इसी जगह रहते थे जहां आज गांव खड़ा था। शुरू में इंसानों और उनके बीच खामोशी का मुआहदा था, एक दूसरे को नजरअंदाज करना। मगर इंसानों ने जमीन बदली, कुनवे खोदे और उनकी हुदूद तोड़ दें। फिर एक रात एक बच्चा गायब हुआ और इल्जाम हमेशा की तरह कमजोर पर आया। गांव के मर्दों ने बगैर तहकीक के फैसला किया। कहा गया, ये वही है, ये मखलूक, ये सायों वाले। किसी ने सच सुनने की कोशिश नहीं की, ना उनकी जुबान समझी गई, ना उनकी आंखें। एक ही रात में उनकी झोंपड़ियां जलाई गईं। जो भागे मारे गए, जो चीखे खामोश कर दिए गए। लेकिन उनमें से एक बच गया, वो मुकम्मल नहीं बचा था। इसका जिस्म जल चुका था, आवाज टूट चुकी थी और आंखों में सिर्फ एक सवाल रह गया था, क्यों? इसने इंसानों से नफरत नहीं की, इसने जमीन से वादा किया कि जब वो वापस आएगा तो सब कुछ वापस लेगा। नूरपुर में अब लोग इस राज को जान चुके थे, मगर जानना काफी नहीं था। साया अब सिर्फ याद नहीं दिला रहा था, वो सजा दे रहा था। इसी रात गांव के सबसे बड़े घर में आग लगी। इस घर का मालिक वही शख्स था जिसके दादा ने इस मखलूक के खिलाफ पहला पत्थर उठाया था। आग बुझाने की कोशिश की गई, मगर शोले पानी से नहीं बुझे। सुबह इस घर के अंदर से सिर्फ एक दीवार बची थी और उस पर एक जली हुई तहरीर, जो तुमने जलाया वो लूट आया है। लोग अब गांव छोड़ने की बात नहीं करते थे, वो जान चुके थे यहां से जाना मुमकिन नहीं जब तक सच का सामना न किया जाए। इसी दौरान एक अजीब बात होने लगी।
रात को कुछ लोग ख्वाब में वही मंजर देखते, जलती झोंपड़ियां, चीखती मखलूक और एक वजूद जो सबके बीच खड़ा था, जलता हुआ मगर गिरता नहीं था। ये ख्वाब नहीं थे, ये यादें थीं। एक नौजवान फहद ख्वाब से जाग कर चीखा, वो हमें नहीं मार रहा, वो हमें वो दुखा रहा है जो हमने किया। इसी रात फहद की मौत नहीं हुई, वो जिंदा रहा, मगर उसकी आंखें हमेशा के लिए अंधी हो गईं। नूरपुर अब खौफ से आगे निकल चुका था। ये जगह अब अदालत थी और साया मुद्दई भी था, और मुंसिफ भी। नूरपुर में अब रात और दिन का फर्क खत्म हो चुका था। सूरज निकलता तो था मगर रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। लोग जागते थे मगर नींद में लगते थे। सब जान चुके थे कि साया सिर्फ मारने नहीं आया, वो समझाने आया है, मगर उसकी जुबान इंसानों जैसी नहीं थी। इस सुबह मस्जिद के सहन में सब जमा थे। कोई दुआ नहीं पढ़ रहा था, दुआओं के अल्फाज जैसे शर्मा गए हों। मौलवी साहब ने कुरान खोला मगर आयत आंखों से फिसलती चली गईं। तब अचानक एक एहसास सबके दिल में उतरा, एक साथ, एक ही लम्हे में। कोई आवाज नहीं थी मगर सब ने एक ही बात सुनी, तुमने हमें सुना नहीं, अब तुम सुनोगे। लोग सहम गए। कुछ ने कानों पर हाथ रखे मगर बात कानों में नहीं थी, वो दिल के अंदर थी। इसी दिन एक पूरा खानदान खत्म हो गया, वो खानदान जो नस्लों से गांव का सरदार रहा था, जिसके बुजुर्गों ने इस रात आग जलाई थी। उनके घर की दीवारें सुबह तक खड़ी थीं मगर अंदर कोई जिंदा नहीं था। सब एक ही कमरे में बैठे मिले, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। उनके चेहरों पर खौफ नहीं था, बस शर्मिंदगी थी। ये पहला मौका था जब गांव वालों ने समझा कि साया अंधा नहीं मार रहा, वो चुन रहा था। वो जानता था कौन कहाँ खड़ा था, कौन खामोश रहा, कौन आग में लकड़ियां डाल रहा था। उसी शाम गांव की सबसे कम उम्र बच्ची आयशा, जो अभी बोलना सीख रही थी, अचानक बोल उठी, वो रो रहा है। मां ने झंझोड़ कर पूछा, कौन? बच्ची ने दीवार की तरफ इशारा किया, जहां कुछ भी नहीं था, जो जलाया गया था। वो ये सुनकर औरतें सजदे में गिर गईं। मर्दों के कंधे झक गए, मगर अभी एतराफ नहीं हुआ था, सिर्फ खौफ था। रात गहरी हुई तो साया मस्जिद के अंदर आया। चिराग जल रहा था मगर रोशनी फर्श पर नहीं पड़ रही थी। मेहराब के सामने अंधेरा जमा होने लगा। कोई शक्ल नहीं बनी, कोई आंख नहीं खिली, मगर मौजूदगी इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। इसी लम्हे हाजी नेमत अल्लाह आगे बढ़े। उनके हाथ कांप रहे थे मगर कदम नहीं। उन्होंने कहा, हमने जुल्म किया, मगर सब एक जैसे नहीं थे। अंधेरा रुका, फिर वही बेआवाज बात, खामोश रहना भी जुल्म था। हाजी नेमत अल्लाह जमीन पर बैठ गए। उनकी कमर जैसे टूट गई हो। हम डर गए थे। जवाब आया, हम भी डरे थे मगर हम जले। इसी रात गांव के कागजात, रजिस्टर, पुराने नाम सब जल गए। आग लगी मगर किसी ने नहीं बुझाई। सुबह जब राख ठंडी हुई तो नूरपुर के वजूद का आखिरी सबूत खत्म हो चुका था। ये सिर्फ एक गांव नहीं जल रहा था, ये एक गलती मिट रही थी। लेकिन साया अब भी मुतमईन नहीं था, क्योंकि एतराफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। कुछ सच अब भी जुबानों में कैद थे, और जब सच दबाया जाए तो अंधेरा और गहरा हो जाता है। नूरपुर में अब लोग कम और राज ज्यादा रह गए थे। जो जिंदा थे वो भी ऐसे जैसे किसी कब्र के अंदर सांस ले रहे हों। किसी के दिल में हिम्मत नहीं थी कि आंख मिलाकर बात करे, क्योंकि सब जानते थे अगला लफ्ज जान ले सकता है। इसी खामोशी में एक शख्स था, नाम था बशीर। बशीर वो नहीं था जिसने आग लगाई थी, वो भी नहीं था जो तलवार लेकर खड़ा था, वो था जो सब देख रहा था। इस रात जब झोंपड़ियां जलें, बशीर छत पर खड़ा था। इसने देखा था कि बच्चा जिंदा था, चीख रहा था, मगर किसी ने नहीं सुना। इसने देखा था कि मखलूक ने हमला नहीं किया था, बल्कि इंसानों ने पहल की थी, और बशीर चुप रहा। इस दिन जब पूरा खानदान एक साथ मरा, बशीर ने पहली बार बोलने का फैसला किया। वो मस्जिद के सह में खड़ा हुआ। इसकी आवाज कांप रही थी मगर अल्फाज साफ थे। सच ये है कि पहला खून हमारा था, उन्होंने हम पर हमला नहीं किया, हमने किया। एक लम्हे को फिजा रुक गई। लोगों ने इसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। कुछ ने आंखें झुका लें, कुछ ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। मगर सबसे खतरनाक चीज वो थी जो दीवारों पर होने लगी। साया हल गया। पहली बार साया पीछे हटा। अंधेरा मस्जिद के सहन से सरक कर दीवारों से लग गया, जैसे कुछ सुनने के बाद खुद को समेट रहा हो।
یہ عجیب لمحہ تھا، جیسے سچ نے اسے بھی زخمی کر دیا ہو۔ بشیر نے بات جاری رکھی، ہم میں سے کچھ نے روکا تھا، مگر ہم نے زور نہیں لگایا، ہم سب شریک تھے۔ اسی لمحے زمین لرز، نہ زور سے نہ شور سے، بلکہ ایسے جیسے کوئی گہری سانس لے رہا ہو۔ مسجد کے ستونوں میں دراڑیں پڑ گئیں اور چراغ کی لو ایک لمحے کو نیلی ہو گئی۔ پھر خون بہا۔ بشیر چیخا نہیں، وہ بس رکا، اس کے منہ سے خون بہا اور وہ وہیں گر پڑا۔ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ سب جانتے تھے کہ یہ حادثہ نہیں ہے۔ سایہ اب مسجد کے عین سامنے تھا، شکل نہیں مگر حد واضح تھی۔ ایک بھاری موجودگی جو نہ غصے میں تھی نہ رحم میں، دلوں میں وہی بے آواز بات اتری۔ سچ بولنے والا دیر سے بولا، اور دیر قیمت مانگتی ہے۔ بشیر مرا نہیں تھا مگر وہ بچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی زبان حرکت میں تھی مگر آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے سچ اس کے اندر اٹک گیا ہو۔ اسی رات بشیر نے آخری سانس لی اور اس کے ساتھ ہی کچھ بدل گیا۔ سایہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، وہ پھیل نہیں رہا تھا، وہ سمٹ رہا تھا، گویا اسے بھی احساس ہو گیا ہو کہ جس چیز کے لیے وہ لوٹا تھا وہ ملنے لگی ہے۔ مگر ابھی ایک بات باقی تھی، کیونکہ سچ بولنے والا مر چکا تھا مگر سننے والا ابھی زندہ تھا۔ بشیر کی موت کے بعد نورپور میں کوئی رویا نہیں، آنسو بھی شاید ڈر گئے تھے۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، مرد عورتیں بچے سب مسجد کے صحن میں جمع ہو گئے۔ کوئی بلانے نہیں آیا تھا، کسی نے اعلان نہیں کیا تھا، مگر سب جانتے تھے کہ اگر آج بھی خاموشی رہی تو کل کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یہ پہلا موقع تھا جب پورا گاؤں ایک ساتھ جھکا ہوا تھا، کسی کے ہاتھ بندھے نہیں تھے مگر سب قیدی لگ رہے تھے۔ حاجی نعمت اللہ نے کانپتی آواز میں کہا، ہم سب شریک تھے، کسی نے آگ لگائی، کسی نے تلوار اٹھائی اور کسی نے صرف آنکھیں بند کیں۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی فضا بھاری ہو گئی۔ سایہ صحن کے کنارے موجود تھا مگر اس بار وہ پھیلا ہوا نہیں تھا، وہ جیسے خود کو ایک حد میں قید کیے ہوئے تھا۔ سننے کے لیے ایک عورت آگے بڑھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک جلا ہوا کپڑا تھا۔ یہ میرے باپ کا ہے، وہ اس رات آگ لے کر گیا تھا۔ وہ بولتے بولتے زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا، میں نے دروازہ بند کیا تھا، ان کے لیے نہیں، اپنے خوف کے لیے۔ ایک ایک کر کے لوگ بولتے گئے، کوئی چیخ نہیں، کوئی الزام نہیں، صرف اعتراف۔ یہ اعتراف دعاؤں جیسا نہیں تھا، یہ زخموں جیسا تھا۔ جوں جوں سچ باہر آتا گیا سایہ بدلنے لگا، وہ گھنا نہیں ہو رہا تھا، وہ شفاف ہو رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے لوگوں کو لگا جیسے اس اندھیرے کے پیچھے کوئی جھکی ہوئی شکل ہے، جلے ہوئے جسم کے نشان اور آنکھوں میں تھکن۔ اسی لمحے ایک بچہ، حمزہ، جو کئی دنوں سے بول نہیں رہا تھا، آہستہ سے بولا، وہ تھک گیا ہے۔ ماں نے جھک کر پوچھا، کون؟ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا جو ہمیں ڈرا رہا تھا۔ اب پہلی بار سایہ پیچھے ہٹا، یہ بھاگا نہیں، غائب نہیں ہوا، بس 2 قدم پیچھے گیا، جیسے کسی نے اسے رکنے کو کہا ہو۔ زمین کی لرزش رک گئی، ہوا نے چلنا یاد کیا۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا مگر یہ سکھ ادھورا تھا، کیونکہ مولانا حارث ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اسی رات خبر آئی کہ شہر میں ایک عالم ہے جو ایسے معاملات جانتے ہیں جن میں انسان اور غیر انسان کے درمیان خون آ جائے۔ گاؤں کے چند آدمی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کے پاس گئے۔ جاتے وقت سایہ نے راستہ نہیں روکا۔ یہ دوسری بار تھا جب کسی کو جانے دیا گیا۔ نورپور میں پہلی بار امید نے قدم رکھا، کمزور لرزتی ہوئی مگر زندہ۔ مگر ہر امید کی قیمت ہوتی ہے اور یہ قیمت ابھی ادا ہونا باقی تھی۔ مولانا حارث فجر سے پہلے نورپور پہنچے۔ وہ گھوڑے سے اترے تو گاؤں نے پہلی بار کسی کو ڈر کے بغیر دیکھا۔ ان کے چہرے پر روب نہیں تھا، عاجزی تھی، آنکھوں میں خوف نہیں، سمجھ تھی۔ انہوں نے گاؤں کی فضا میں ایک لمحہ سانس لیا اور آہستہ سے کہا، یہ جگہ زخمی ہے اور زخم چیختے نہیں رالاتے ہیں۔ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے تفصیل نہیں دی۔ مولانا نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، دیواروں پر رکے سائے، زمین کی خاموش کپکپاہٹ اور لوگوں کی جھکی ہوئی گردنیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ جنات کا معاملہ نہیں، یہ مظلوم کا لوٹا ہوا حق ہے۔ یہ سن کر کئی دل دہل گئے۔ اسی رات مولانا حارث مسجد میں اکیلے بیٹھے، کوئی چراغ نہیں جلایا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ روشنی یہاں کام نہیں آئے گی۔ انہوں نے قرآن کھولا مگر تلاوت شروع کرنے سے پہلے زمین پر ہاتھ رکھا۔
अगर तो सुन रहा है तो जान ले मैं तुझे मिटाने नहीं आया। अंधेरा मस्जिद के दरवाजे पर जमा होने लगा। ये पहली बार था कि साया बुलाया गया था। हुआ बंद हो गई, दीवारें पसीने की तरह नमी छोड़ने लगे और फिर वो आया। साया इस बार बेकाबू नहीं था। वो फैला नहीं, इसने हद नहीं बदली। वो मौलाना के सामने रुका। मौलाना की आवाज कांपी मगर अल्फाज नहीं। तेरा हक लूटा गया, तेरा दर्द सच्चा है, मगर अब जो हो रहा है वो तुझे भी जला रहा है। लम्हों तक कुछ नहीं हुआ, फिर मौलाना के दिल में वही बेआवाज बात उतरी, मगर इस बार इसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकन। मैं अकेला नहीं मरा था। अचानक मौलाना हारिस के सामने मनाजिर खिल गए। वो जलती बस्ती, चीखते बच्चे और वो मखलूक जो जमीन पर गिरी हुई थी और इंसानों को देख रही थी समझने की कोशिश में। मौलाना के आंसू बहने लगे। तुमने बदला ले लिया, अब हिसाब अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अंधेरा लरस गया। ये वो लम्हा था जब गांव दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग सजदे में गिर गए और कुछ पीछे हिट गए। एक आदमी चीख उठा, अगर ये चला गया तो हमारे गुनाह कौन उठाएगा? मौलाना ने पलट कर देखा। गुनाह उठाने के लिए साया नहीं, तौबा चाहिए। इसी लम्हे साया ने पहली बार इनकार किया। फिजा में एक भारी दर्द उतरा। अगर मैं गया तो मुझे कौन याद रखेगा? मौलाना खामोश हो गए। ये सवाल किसी मखलूक का नहीं था, ये सवाल मजलूम तारीख का था। मस्जिद के सुतून कांपने लगे। ये फैसला आसान नहीं था। आ तो साया रहे और गांव खत्म हो जाए, आसाया जाए और उसका दुख दफन हो जाए। मौलाना हारिस ने आंखें बंद कर लें। फैसला अब बाकी था। मस्जिद में वक्त रुक चुका था। ना फजर हुई ना रात खत्म हुई, जैसे जमीन और आसमान दोनों फैसला सुनने के मुंतजिर हों। मौलाना हारिस ने आंखें खोली। उनकी निगाह साया पर नहीं थी बल्कि लोगों पर थी। ये मसला दुआ से हल नहीं होगा और तुम्हारे दर्द का बोझ उठाए तो तुम इस गांव को छोड़ दोगे। फिजा में गहरा सुकूत छा गया। यह कुर्बानी जान की नहीं थी, ये वजूद की थी। साया रुका रहा। फिर वही एहसास सबके दिल में उतरा, अगर वो सच्चा हुआ तो मैं रुक जाऊंगा। किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। सबकी नजरें जमीन पर थीं। हर दिल में एक ही सवाल था, कौन अपनी पहचान मिटा सकता है? तब एक नहीफ आवाज उभरी, मैं। सब चौंक गए। ये हाजी नेमत अल्लाह थे, वही बुजुर्ग जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि ये जमीन हमारी नहीं। उनके हाथ कांप रहे थे मगर आंखें पुरसुकून थीं। मैंने देखा था, मैंने रोका नहीं। अगर किसी को बोझ उठाना है तो मुझे उठाना चाहिए। मौलाना हारिस ने आगे बढ़कर उनका कंधा थामा। ये रास्ता वापसी का नहीं। हाजी नेमत अल्लाह मुस्कराए। कुछ रास्ते वापसी के लिए नहीं होते, दुरुस्तगी के लिए होते हैं। साया उनके सामने आया। इस बार अंधेरा जलता हुआ नहीं था, वो झुका हुआ था। हाजी नेमत अल्लाह ने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। मौलाना ने उनके सर पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता आयात पढ़ना शुरू की। न जिन्नात के लिए, न इंसान के लिए, बल्कि इंसाफ के लिए। वह चलने लगी। लोगों ने देखा कि हाजी नेमत अल्लाह का साया आहिस्ता आहिस्ता अलग होने लगा, जैसे उनका वजूद दो हिस्सों में बट रहा हो, एक मिट्टी में, एक अंधेरे में। किसी ने चीख मारी, उन्हें रोको, मगर कोई कदम ना उठा। जब तिलावत खत्म हुई तो हाजी नेमत अल्लाह वहां नहीं थे। ना लाश, ना खून, बस जमीन पर एक गहरा निशान, जैसे कोई बोझ सदियों बाद उठा लिया गया हो। साया अब फैल नहीं रहा था। वो सिमट कर इस निशान में उतरने लगा। जाते जाते एक आखिरी एहसास सबके दिल में उतरा, मुझे याद रखना, मगर डर के साथ नहीं, इंसाफ के साथ। हुआ साफ हो गई। चिराग जलने लगे। कुत्तों ने भौंकना छोड़ दिया। नूरपुर पहली बार सांस ले रहा था, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो कुर्बानी देता है वो हमेशा मुकम्मल तौर पर नहीं जाता। नूरपुर अब पहली बार खामोशी से सांस ले रहा था। चिराग जल रहे थे, हुआ चल रही थी, मगर जमीन के अंदर कुछ हल रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे हर रेत का जर्रा एक पुरानी याद संभाल रहा हो। हाजी नेमत अल्लाह का वजूद जमीन में उतर चुका था। ना लाश, ना खून, बस एक गहरा निशान जिसे गांव वाले एहतराम और खौफ दोनों के साथ देख रहे थे। मौलाना हारिस ने इसे हाथ लगाया। जमीन से एक खफीफ सर्दी निकली, जैसे वो साया अब भी जिंदा याद है। साया अब वापस जा रहा था, मगर पिछली बार की तरह नहीं। अब वो सबके दिलों में मौजूद था, खौफ के साथ और याद के साथ। किसी ने इसे देखा नहीं, मगर सब ने महसूस किया। खेतों में हर पौधा झक रहा था। दरख्तों की शाखें ऐसे हल रही थीं जैसे कोई मरकजी नाजिर हो।
और हुआ में एक सरसराहट थी जो इंसानी कानों से नहीं सुनाई दे रही थी। ये याद दिलाने के लिए थी कि जमीन पर जुल्म भला नहीं होता। गांव के लोग अब खामोशी और खौफ में जिंदगी गुजारने लगे। हर कोई जानता था कि साया गायब हो गया, मगर उसकी मौजूदगी मुकम्मल खत्म नहीं हुई। एक बच्ची ज़ैनब जो अभी बोलना सीख रही थी, एक दिन कहती है, वो हमें देख रहा है और हमें याद रखवाया है कि हमने क्या किया था। माँ इसे गोद में लेकर सर झुका लेती है। ये खौफ, ये सबक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला था। मौलाना हारिस ने गांव वालों को नसीहत की, नूरपुर जिंदा रह सकता है अगर याद रखो, अगर खौफ के साथ नहीं बल्कि इबरत के साथ। ये साया ना बदला लेने के लिए आया, ना सजा देने के लिए, वो हमें हमारी गलतियों का आईना दिखा गया। गांव वाले खामोश रहे, किसी ने आंखें बंद की, किसी ने हाथ दुआ में जोड़े। सब जान गए कि अब कोई भी मामूली जिंदगी नहीं गुजार सकता। नूरपुर एक सबक की बस्ती बन चुका था। जमीन पर वो निशान जहां हाजी नेमत अल्लाह उतरे थे, वक्त के साथ एक छोटी सी घाटी में बदल गया। लोग कहते थे ये जगह साया की यादगार है, और इसी यादगार ने गांव को बचाया। ये वो यादगार थी जो सबके दिलों में मौजूद थी, मगर किसी की जुबान पर ना थी। नूरपुर अब कभी पहले जैसा नहीं रहा था। गांव की गलियों में वो सन्नाटा अब एक सबक की गूंज बन गया था। हर दरख्त, हर पता, हर कुनवा, सब ने वो रातें याद रखी थीं जब साया चलता था। और सबसे ज्यादा याद वो था जिसने अंधेरों के अंदर सब कुछ देख लिया, इंसानों की कमजोरी, उनके खौफ और उनके दिल की हकीकत। मौलाना हारिस ने आखिरी बार मस्जिद के मीनार पर खड़े होकर कहा, ये साया सिर्फ एक सबक है, ये तुम्हारे अमाल का अक्स है। अगर तुम भूल गए, ये दोबारा आएगा। साया ने इस लम्हे पहली और आखिरी बार पूरी सूरत जाहिर की, ना इंसान जैसी शक्ल, ना जानवर जैसा वजूद, सिर्फ एक गहरा साकिन साया जो जमीन के ऊपर छाया हुआ दुख था। इसकी आंखें नहीं थीं, मगर वो सब कुछ देख रहा था और सब कुछ याद रख रहा था। नूरपुर के लोग अब जिंदा थे, मगर हर सांस के साथ वो सबक याद रखते थे। मवेशी बच गए, बच्चे खेलने लगे, लेकिन शाम होते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते और लोग दुआएं पढ़ना शुरू कर देते। ये खौफ नहीं, इबरत थी। ये याद था कि ज़मीन सिर्फ कब्जे के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए है। हाजी नेमत अल्लाह की कुर्बानी हमेशा याद रखी गई। उनका नाम सिर्फ तारीख में नहीं बल्कि हर दिल में था। वो शख्स जो सबसे पहले सच बोलकर साया को मुतमईन कर गया, वो गांव के लिए हमेशा रोशनी का निशान रहा। और साया वो गायब नहीं हुआ, वो सिमट गया जमीन के अंदर, यादों में, लोगों के ज़मीर में। वो वहाँ मौजूद था ताकि कोई भी दोबारा ये ना समझे कि जुल्म और खौफ हमेशा छप सकते हैं। नूरपुर की आखिरी सुबह में जब सूरज पहली बार पहाड़ों के ऊपर से निकला, एक अजीब रोशनी फैली। ये रोशनी साया की नहीं बल्कि सबक की थी। गांव के लोग बाहर आए, गले मिले और पहली बार बगैर खौफ के हंसे, लेकिन दिल के किसी कोने में सब जानते थे साया हमेशा मौजूद है, और जो जमीन पर जुल्म करेगा वो इसे देखेगा और याद रखेगा। ये थी एक और कहानी जो हमें एक सबक सिखाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और बताएं कि आपको आज का सबक कैसा लगा। याद रखें, हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है।